you. This lesson is written by A.R. Williams. It is also about some geographical experience. So let us start. Discovering Tut, the saga continues. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. So, this ruler of Egypt, he was just a teenager when he died. Young age में he he died and he was the last heir यानी आखिरी वारिस था ये एक पावरफुल फैमिली का जिसने इजिप्ट पर रूल किया था कई सदियों तक फॉर सेंचुरीज द फैमिली हैड रूल्ड ओवर इजिप्ट ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड यानी कि जब इनको दफनाया गया जैसा कि वहां का कस्टम होता है तो लेडन विद गोल्ड सोने के जो जेवर वगैरह थे उसके साथ इनको दफनाया गया था और बाद में उसको सब लोग भूल गए सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इनकी टॉम्ब यानी जो मजार थी उसको डिस्कवर किया गया 1922 में द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्युलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम और फिर उसके बाद जांच शुरू हुई कि फाइनली इस टीनेजर की डेथ कैसे हुई थी और now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan. Tut, जो ये इसका नाम था फराहो फराहो यानी कि वहां का जो रूलर है तो फाइनली ये सस्पेक्ट किया गया यानी शक था कि उसका मर्डर किया गया था और अब उसका पूरा सीटी स्कैन वगैरह हो रहा है फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन यानी कि जब हम उसके डीएनए सैंपल्स वगैरह जो भी है वो लेकर के ये अनुमान लगाते हैं कि वो कैसा रहा होगा एंड फाइनली उसकी डेथ कैसी हुई An angry wind stirred up ghostly dust. Devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark-bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in casket grey. It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. और उस वक्त जब किंग टट जो ये टीनेजर था जिसकी डेथ हो गई थी तो इसको जब निकाला गया इसकी टॉम से इसकी कब्र से तो उस वक्त बहुत तेज हवाएं चल रही थी जिससे कि वो डेजर्ट एरिया है इजिप्ट में तो बहुत तेज हवाएं चल रही थी जिसके साथ रेत उड़ रही थी और ही वॉज टेकन आउट फ्रॉम द इजिप्शियन सिमेट्री वैली ऑफ द किंग यानी कि जहां पर राजाओं को दफनाया जाता है तो वहां से उसकी डेड बॉडी को निकाला गया था एक्चुअली इट वाज द मम्मी
जो इजिप्ट में पाई जाती हैं, यानी ओनली द स्केलेटन इज लेफ्ट। और उसी वक्त डार्क बेलीड क्लाउड्स यानी घने काले बादल पूरे आकाश में छा गए थे। और अब उसमें बीच बीच में कहीं जो स्टार्स हैं वो नजर आ रहे थे। इट वॉज 6 PM, 6 बजे शाम को 5 जनवरी 2005 में उसको निकाला गया। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, दिस वॉज द वर्ल्ड्स most famous mummy. Mummy means the skeleton left after somebody has died. जब उनको दफना दिया जाता है तो वो अंदर उनको ममीज बोलते हैं। और पहली बार किसी मम्मी का हेड सीटी स्कैन में डाला गया था। और यहाँ पर एक मेडिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी कि हाउ दिस यंग रूलर डाइड। और एक्चुअली दिस किंग टट died in died about 3,300 years ago. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him, was really true. और उस दिन जब उसकी मम्मी को डिस्कवर किया गया था इसको, तो पूरे आफ्टरनून में टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे थे जहां से इस स्टॉर्म को जब डिस्कवर किया गया था। तो दैट वाज सम 26 फीट अंडरग्राउंड स्टॉर्म जहां उसको दफनाया गया था। तो वहां पर वो लोग अपना होमेज देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। और वो म्यूरल्स यानी कि जो पेंटिंग्स होती है ऑन द वॉल्स, जिससे कि उसका एक तरह से स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है। तो वहां जो बरियल चैम्बर था यानी कि जहां उसकी कब्र बनाई गई थी, उसकी वॉल्स पर देवर गेजिंग, वो लोग देख रहे थे उन म्यूरल्स को जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं। और उसके अलावा वो जो टट का जो फेस था वो भी देख रहे थे। और इस मम्मी का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था उसका जो कॉफिन लिड, कफन का जो ढक्कन होता है, बॉक्स होता है, दैट इज कॉल्ड कॉफिन, जिसमें डेड बॉडी को रख करके उसको बरी किया जाता है। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ लोग गाइड बुक्स में से धीरे धीरे कुछ पढ़ रहे थे, कुछ बिल्कुल चुपचाप खड़े हुए थे। शायद वो लोग सोच रहे थे कि ये इसकी डेथ कैसे हुई होगी इन लेट टीन्स, दैट मीन्स अराउंड 18-19 years old when he was। एंड कुछ लोग डर से थोड़ा डर भी रहे थे कि इसका श्राप हमको लग सकता है क्योंकि हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया है, यानी कि उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया है। एंड शायद perhaps it was true. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Howard Carter, that is what was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery
and still get the most attention. But that was also buried with everyday things he'd want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. So उसको जब रीडिस्कवर किया गया, निकाला गया वहां से, तो जो सेक्रेटरी जनरल है रही हबास, उसने कहा कि अभी दिस ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, क्योंकि कार्टर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1920 में, और उसने बॉडी को एग्जामिन करते हुए ये बात बोली। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट दोज आर दोज पर्सन who discover about the facts of the history, जो पुरानी चीजों को के बारे में सर्च करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। तो दैट इज द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, वर्क ऑफ द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड ही वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट। और 1922 में इसने इस टॉम को डिस्कवर किया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, फ्यूटाइल यानी यूजलेस, काफी दिनों तक रिसर्च करते रहने के बाद, ढूंढते रहने के बाद, फाइनली इन 1922 he discovered the tomb. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, अभी जो उसके जितने भी सामान थे वो बहुत पुराने हो चुके थे। एंटिकिटी मीन्स वेरी ओल्ड, एंटिक मीन्स वेरी ओल्ड, लेकिन फिर भी वो सब कंप्लीट थे, वैसे के वैसे ही थे अभी तक। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि उसको पूरे गोल्ड वगैरह के साथ दफनाया गया था, तो वो सारी चीजें वहां पर मौजूद थी, एंड इट वाज द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। किसी भी फराव जो वहां का रूलर होता है, तो अब तक के इतिहास में ये सबसे रिच कलेक्शन था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, अभी भी हैरान कर देने वाली सारी जो गोल्ड की चीजें थी वो सब वहां मौजूद थी। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड, स्टन्ड टू सी दैट। और उसके साथ साथ सारी जो एवरीडे के यूज की चीजें हैं, उसके काम की चीजें थी, वो सब भी उसके साथ दफनाई गई थी। बिकॉज इट इज अ कस्टम कि जिसकी भी डेथ होती है उसके साथ हम उसकी पसंद की सारी चीजें भी, जस्ट टू शो द अफेक्शन टुवर्ड्स द डेड पर्सन, तो वो सारी चीजें उसके साथ रख दी जाती हैं जो उसकी पसंद की होती हैं या उसकी जरूरत की चीजें होती हैं। जैसे कि बोर्ड गेम्स, ही वॉज अ टीनेजर, तो उसके साथ बरी किया गया था बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स जितने भी थे, एंड food and wine. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers. The faded evidence of a burial in March or April. और उसके बाद जब कार्टर ने उसको डिस्कवर कर लिया, खुशी टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। लेसन 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो कई महीनों तक उसके जो फ्यूनररी ट्रेजर्स, यानी कि जो भी सामान उसके साथ दफनाए गए थे, तो उन सब चीजों को केयरफुली स्टडी किया गया। और उसके बाद कार्टर ने 3 जो नेस्टेड कॉफिन्स, 3 कॉफिन्स थे वहां पर, तो उनको एग्जामिन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले वाले को खोला तो उसमें
देखा श्राउड यानी एक मूर्ति adorned with garlands of willow and olive leaves, जिसपे फूलों की मालाएं ऑलिव लीव्स चढ़े हुए हैं। वाइल्ड सेलेरी जो एक फली टाइप से होती है जिसको खाने में काम में लिया जाता है, और उसके अलावा लोटस पेटल्स कमल के फूलों की जो पत्तियां हैं, एंड कॉर्नफ्लावर्स, ये सब वहां उसको मिले। द फेडेड एविडेंस, इससे उसने अनुमान लगाया कि इसको बरी किया गया था यानी दफनाया गया था मार्च या अप्रैल में। द राइचुअल resins had hardened, cementing that to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? और जब फाइनली वो इन सब सामानों को हटाते हुए फाइनली जब उसकी डेड बॉडी यानी मम्मी तक वो पहुंचा तो वो मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि राइचुअल रेजिन्स जो सामान उसके ऊपर डाले गए थे, जो सामान उसके साथ दफनाए गए थे, वो इतने हार्ड हो चुके थे कि वो बिल्कुल जम चुके थे, और उसकी वजह से जो तट की डेड बॉडी है यानी कि जो मम्मी है वो सॉलिड गोल्ड कॉफिन के अंदर बिल्कुल चिपक गई थी एक तरह से, और उसको निकालना वहां से बहुत ही मुश्किल था। तो कार्टर रोट दैट व्हाट वाज टू बी डन, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे उस कॉफिन से बाहर निकाला जाए। द सन कैन बीट डाउन like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. और फिर उसने सोचा, उस ऊपर जो सामान थे वो इतना हार्ड हो चुके थे, लाइक सीमेंटेड, कि जो उसकी मम्मी है, उसकी डेड बॉडी है, उसको निकालना इट वाज इम्पॉसिबल। तो उसने देखा कि इजिप्ट में जो कि डेजर्ट एरिया है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और कार्टर ने सोचा कि इस हीट को यूज किया जाए ताकि जो रेजिन जो भी सामान उसके ऊपर है राइचुअल के टाइम पर जो कस्टम के हिसाब से डाले गए थे, तो वो सबको हटाने के लिए इस हीट को हम यूज कर सकते हैं। सो फॉर सेवरल आवर्स उसने उस मम्मी को ब्लेजिंग सनशाइन यानी धूप में रख दिया, जहां 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की हीट उस तक पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। नथिंग बस्ट, कुछ भी नहीं हो पाया। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, और उसने निराश होते हुए एक तरह से लिखा कि कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पिघल रहा है, सॉफ्ट नहीं हो रहा है, सनशाइन में भी, हीटिंग से भी। तो अब फाइनली तरीका यही है, चिजल्ड अवे यानी उसको खोद करके, चीजल होती है जो छेनी होती है ना जिस पर हथौड़ी से वार करते हैं और खुरचा जाता है, किसी चीज को निकाला जाता है। तो ही सेड कि ये सारे जो मटेरियल्स हैं इनको खोद करके निकालना पड़ेगा, तब जा करके हम जो किंग की डेड बॉडी है, मम्मी है, उसको निकाल पाएंगे। ओके खुश, पे अटेंशन इन योर स्टडीज एंड बी इन टाइम फॉर द क्लास।
In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In that time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. To separate that from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. तो दरअसल इस मम्मी को डिस्कवर करने और इसको निकालने के पीछे रीजन ये था कि एवरीथिंग वाज देयर वाज अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड रिचेस विद दैट मम्मी, क्योंकि उस वक्त जो ये और कार्टर ने जो डिसाइड किया था कि उसको खोद करके उसको टुकड़े टुकड़ों में काट करके फिर उसको निकाला जाएगा, तो उसके पीछे उसने अपना रीजन दिया अपने बचाव का कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जो चोर हैं वो ऐसा कर लेंगे और गार्ड को चकमा दे करके या मार करके या कुछ भी करके वो फाइनली इस गोल्ड को निकाल करके ले जाएंगे. सो इट्स बेटर इफ कार्टर इज डूइंग सो. और जिस टाइम में ये तट जो है वो रहा करता था, रूल किया करता था, इसकी फैमिली का रूल था, तो वहां पर रॉयल्स जो थे वो बहुत ज्यादा वेल्दी हुआ करते थे और उनका ये मानना था कि वो मरने के बाद अपनी जितनी भी दौलत है वो भी अपने साथ ले जा सकते हैं. सो फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और इसलिए जब किंग टट की डेथ हुई इन हिज लेटर टीन एज, तो उन लोगों को लगा कि इसके साथ साथ हम सारी जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड की चीजें हैं, वो सब इसके काम आएंगी आफ्टर लाइफ. तो इसीलिए ही वॉज लैविश्ड, यानी उसको पहनाया गया था विद ग्लिटरिंग गुड्स, यानी कि चमकते हुए सोने हीरे जवाहरात के जो जेवरात थे, जैसे कि नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स जो आर्म में पहने जाते हैं, सेरेमोनियल एप्रन जो कफन जो एक तरह से उड़ाया जाता है, और सैंडल्स यानी चंदन भी वहां रखा गया था, सॉरी सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स. तो एवरीथिंग वाज कॉफिन, मास्क, सब कुछ गोल्ड का बना हुआ था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. टू सेपरेट दैट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, इन सब ऑर्नामेंट्स को, ये जितने भी जेवर जो भी उसके साथ रखे गए थे, जो उसको पहनाए गए थे, उन सबको निकालने के लिए उसको अलग करना जरूरी था. सो कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड. सबसे पहले हेड को उन्होंने अलग किया, उसके बाद करीब करीब हर जॉइंट को अलग करके वहां से जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, जो भी कीमती ऑर्नामेंट्स चीजें थी, उन सबको अलग किया गया. और सबको निकालने के बाद फिर सैंड यानी रेत पर उसको रख करके वापस से ज्वाइन किया गया, रीअसेंबल किया गया, दोबारा से सारे जॉइंट्स को फिक्स किया गया और एक वुडन बॉक्स में उसको रख दिया गया ताकि क्या डैमेज, क्या नुकसान हुआ है वो पता नहीं चले. और सारी जो भी रिचेस थी, जो भी गोल्ड आइटम्स थे, जो भी कीमती सामान थे, जितना भी गोल्ड था, वो निकालने के बाद खाली उसकी जो बॉडी थी उसको वापस
एक वुडन बॉक्स में रख दिया, जबकि पहले उसका जो कॉफिन था वो गोल्ड का बना हुआ था, और अभी वो उस वुडन बॉक्स में ही रखा हुआ है। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. और समय के साथ साथ इस पर रिसर्च चलती रही, और आर्कियोलॉजी अब कई दशकों के बाद अब उस खजाने की सिर्फ तलाश नहीं कर रही है, बल्कि अब वो ये जानना चाहते हैं कि फाइनली उसकी डेथ कैसे हुई थी। इंट्रीगिंग मीन्स साजिश करना, किसी ने उसकी साजिश की थी उसकी डेथ की, या उसके साथ क्या किया गया था, तो क्या रहस्य था। मिस्ट्री मीन्स व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज डेथ। इट ऑल्सो यूजेस, और अब उनके पास और कई सारे साधन हैं, सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं, आधुनिक जो मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी है, तो उसकी मदद से वो लोग अब उसकी मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन इन 1968, यानी कि कार्टर ने इसको डिस्कवर किया था 1922 में, तो उसके 40 साल के बाद, करीबन 40 साल के बाद, एक एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी मीन्स अंदर जो भी हमारी आंतरिक संरचना होती है, बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उस मम्मी का एक्सरे किया, और उन्होंने स्टार्टलिंग यानी चौंकाने वाला एक तथ्य, एक फैक्ट बताया कि रेजिन यानी जो भी सामान थे जो उनकी चेस्ट के ऊपर रखे हुए थे, तो उसके नीचे उनकी जो ब्रेस्ट बोन है और फ्रंट रिब्स है वो गायब है, यानी कि सामने की जो पसलियां हैं वो नहीं है। टुडे diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of that than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die, and how old was he at the time of his death? और आज जो हमारे मेडिकल टूल्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही एडवांस्ड हो चुके हैं। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि जिसको सीटी स्कैन हम बोलते हैं, तो वो एक्सरे से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और उसमें एक तरह से 3 डायमेंशनल यानी कि 3D इमेज बॉडी की बन जाती है, वर्चुअल इमेज, जिससे सारा कुछ पता लग जाता है। What more would a CT scan reveal of that than the X-ray? लेकिन एक्सरे में जैसे कि पता चला था कि उसकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग है, अब सीटी स्कैन में क्या सामने आएगा ये किसी को अभी तक नहीं पता था, और फर्दर कौन से फैक्ट्स सामने आएंगे अबाउट दैट। लेकिन फाइनली दे वांटेड द आंसर ऑफ द टू बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, यानी कि जो अभी तक पेंडिंग थे, बचे हुए थे, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले थे, और वो दो क्वेश्चंस थे, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। उसकी डेथ कैसे हुई, और जब उसकी डेथ हुई तो उसकी उम्र कितनी थी। King Tut's demise was a big event, even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away
and its aftermath are unclear. और वैसे भी जब किंग टट की डेथ हुई थी, उसका जो सडन डिमाइस था, वो एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली, अपने खानदान का आखिरी वारिस था। उस खानदान का जो कई सदियों से, सेंचुरीज से रूल करता आ रहा था, और उसके साथ साथ ही, उसके फ्यूनरल के साथ साथ ही, वो एक पूरी डायनेस्टी का एंड हो गया था। एक पूरे वंश खत्म हो गया था। तो ये जानना जरूरी था कि हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एंड व्हाई डिड ही डाई। तो लेकिन अभी तक ये सारे जो क्वेश्चंस थे, वो उनके जवाब नहीं मिले थे। इज दैट क्लियर? We'll continue it in the next class. Just read the lesson and find out the word meanings and learn them. जो भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आए हैं, उनको अंडरलाइन करिए. Either find out the answers yourself or just ask me in the next class.